हमें बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए, राइट? बेसिक थिंग्स about comparing quantities when we discuss about the cost price, selling price. So first of all, what is cost price? What is cost price? Distributed the assignment or not? So yes, distributed. Okay. Right. So we shall know what is the cost price, whatever the price we are paying for some commodity, some item, something. Then what is the selling price? When we are talking about a suppose shopkeeper. If shopkeeper buys something at the price, that price is known as cost price. Is this clear? Is this clear or not, bacho? Sir, yes. Now, whatever the price he is selling is known as price. What selling price include? Cost price plus profit. Right? Is this clear? Sir, yes. What else can be selling price? Cost price minus loss also. So this is your selling price. Now what is your mark price? Suppose what is your mark price? Sir, the price printed on the. Yes. तो कीजिए हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं बेटा. सपोज यू हैव गॉन टू बाय सम क्लोथ्स फॉर योरसेल्फ. आप लोगों ने एक शर्ट बाय करनी है. लेट्स से मार्क प्राइस ऑन दिस इज रुपीज 500. राइट? So yes. Cost price of the shopkeeper is, let's say, rupees 200. He is offering a discount of 50%. Right? ठीक है, सेल सीजन चल रहा है बच्चे. He is offering a discount of 50%. Now what will be the selling price? If the discount is 50%, now what is the selling price? Please tell me. What will be the selling price, बच्चों? 50% off. Raise your hand if you know the answer. Go again. Can you tell me what is the selling price? Any girl have extra click? सुई जो लेकर आती है किसी के पास? Yes, students. अच्छा, इतनी तो लग रही है कैलकुलेट करने में. हाँ जी. 250. बच्चे बिल्कुल सिंपल सी चीज है ना. देखिए 50% डिस्काउंट है. So how you have to find the selling price? What is the formula for finding the selling price? Discount percent multiplied by MP. MP. Is this clear? This is the formula. So yes. What is discount? What is discount? 50%. When you say percent means divide by 100 into. to 500. So this comes out to be 250. right. Is this clear, bachcho? So have you understood what is discount, what is cost price, selling price, and will he be having some profit or loss? प्रॉफिट होगा बेटा, लॉस होगा शॉपकीपर को? Profit. Profit. Very good, right? So concept is clear to you. Any other doubts, बच्चों? So there are No. No. 4-5 terms in this topic.
अगर मार्क प्राइस के प्लेस पे व्हाट आर द अदर वर्ड्स व्हिच कैन यूज? मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, Price. कैटलॉग प्राइस. Catalog price can also be there, right? So one and the same thing. Is this clear? Sir, yes. अपन फटाफट से असाइनमेंट करते हैं बेटा. Please open your assignment. MCQs. M1. A jacket was sold for rupees 1120. मतलब sold मतलब selling price. Is this clear बच्चों? After allowing a discount of 20%. The mark price of the jacket is. We have to find its mark. Right, बच्चों. How to find out? See, understand one thing. Selling price is equal to mark price minus. What is minus? Discount. Discount. How we can find out discount? What is the formula for discount? Discount percent of MP. Discount percent of, MP. right? So, what will be the discount here? 20% of X. 20%. अगर आप MP को X ले रहे हो बेटा, let's say this is X net, right? So what will be the formula then? What is MP? X. X minus 20% of X. बच्चों, and selling price. Is it clear? Sir, yes. 1120 is equal to X minus 20 by 100 of into X. Is this clear, बच्चों? Yes or no? The rule is whatever you have to find, take that X. So we were supposed to find out mark price. So hence we have taken mark price as X. Now you can solve this linear equation. Done. Yes. ये linear equation बन रही है Yes. और linear equation आप सबको solve करनी आती है, तो ये जल्दी से solve कर दो. अब जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, but others also do it please. ये नजर आ रहा है बेटा एक बच्चे का हाथ जिसने कर लिया है. I see. हाँ जी, हो गया बच्चों? क्या वैल्यू आई बेटा? 1400. Done. 1400. तो सॉल्व करते हैं बेटा. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. आपने पहले एलसीएम ले लिया बेटा. आपने 5 इसके डिवाइड बाय 1 कर दिया तो दिस बिकम्स Done. 1 से यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 4x. Yes. 4x equal to 1120 into 5 and x will be equal to 1120 into 5 over 4. इसको सॉल्व कर लिया बेटा. 4 280. 80. Yes. 1400. 40. Done. Right, so your mark price is 1400. So choice. D. Next question beta. The mark price of an article is rupees 80 and the selling price is 76. Find the discount percentage. यहाँ पे अब आपको क्या given है बेटा? Mark price. Mark price given है rupees. 80. Selling price given है. Rupees 76. So you can find out first of all discount. Yes. What is the discount? D% of MP. MP minus SP. Right बच्चों? 18 to 100. 85 to 4. Done. Now discount is always calculated on
मार्क प्राइस इन दिस केस, अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता है तो डिस्काउंट इज नेवर ऑन कॉस्ट प्राइस, इट इज ऑलवेज ऑन मार्क प्राइस. बट अदरवाइज परसेंटेज जब कैलकुलेट करनी होती है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, दैट इज ऑन कॉस्ट प्राइस. दिस इज क्लियर. तो ये दो चीजें आप हमेशा याद रखना बच्चों. सेक्शन ए is disconnected. Section B, you people can hear me? Sir, yes. No, section A is back. Right. Section A, can you hear me now? Yes. Yes. Discount आ गया बेटा 4 rupees. So now what we have to find? Discount percent. Right? Let the discount percent is X. Right? So what does this mean? Percent of M. कितना हो गया? Equal to? Discount. तो अब क्या हो जाएगा? X percent of MP. X percent means X by 100 into what is MP? 80 is equal to 4. इसको सॉल्व कर लिया बच्चों? Right? So what this becomes? 5%. Here, 5. कितना आ गया डिस्काउंट बेटा? 5%. किसी बच्चे को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आई, एनीथिंग, प्लीज कैन आस्क द क्वेश्चंस. राइट? Yes. कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आपकी इसमें चॉइस आ जाएगी डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, it is sold for rupees 680. Now here what is given to you? Discount percent is given. Then selling price is given. The mark price. जो फाइंड आउट करना है, it is same like the first question बेटा, please do it. Exactly the same question as the number 1 question was. हाँ जी बच्चों, हो गया? Yes, sir. क्या किया बताइए मेरे को बेटा. मार्क प्राइस, लेट द डिस्काउंट इज 15%. मार्क प्राइस माइनस 15% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 680 बेटा. Yes. समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? देखिए मार्क प्राइस है ये, इसमें से हमने डिस्काउंट माइनस कर देना है. डिस्काउंट कितना होगा? 50% of FP. तो इसको आप सॉल्व करेंगे. X minus 15 over 100 X is equal to 680. 320. X minus 3 by x, 3 by 20x. Is equal to 17x over 20. आगे में बच्चों सॉल्व करके एलसीएम लिया. 20x 20. minus 3x is equal to 680. 17x over 20 is equal to 680. राइट बच्चों? So yes. x will be equal to 680 into 20 over 70. ये आ जाएगा 40. then it comes out to be 800. राइट. देखिए स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन में. यहाँ पे मैंने लिखा ना 680 मल्टीप्लाइड बाय 20.
तो क्या करते हैं, पहले ना 680 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, फिर बाद में उसको 17 से डिवाइड करेंगे। प्लीज डू द लीस्ट कैलकुलेशन। आप जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे उतने मिस्टेक के चांसेस बढ़ेंगे बेटा। इसको हमेशा लीव इट लाइक दैट, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, जस्ट डिवाइड करके पहले कटिंग करनी है, फिर एक ही बार मल्टीप्लिकेशन करनी है। इज दिस क्लियर? Sir, yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, a shopkeeper offers his customers 10% discount and still makes a profit of 26%. What is the actual cost price? हाँ जी बच्चे, ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन। Sir, done. A shopkeeper offer his customers 10% discount. Discount is 10%. It makes a profit of 26%. 6%. Right? What is the actual cost of an article marked rupees 280? अच्छा, mark price भी given है. Rupees 280. the cost price. What is the actual cost? S. Clear? So बच्चों देखिए, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, कॉस्ट प्राइस पूछा है। हाउ टू डू दिस? Listen बच्चे carefully. Mark price is given, discount is given. Can we find selling price? Yes. Yes. So what is the selling price बच्चों? Selling price, mark price minus 10% of mark price. Yes. This comes out to be 280 minus 10% over 100. Peter, no talking please. So this is comes out to be selling price. 28 minus 280. Right? Price comes out to be. 252. So 250. Now this is the selling price. Now we have to find cost price, and it is given there is a profit of 26%. So we will let the cost price be rupees X. So then cost price plus 26% profit, that is 26% of X, equal to selling price. What is selling price? 252. बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं बच्चों, आंसर आ जाएगा। 200. क्या बच्चों? सो दिस कम्स आउट टू बी, एलसीएम लिया इसका 126. Sir, 126 over 100. 252. so this comes out to be 252 over 126. आ गया 2 x equal to 100. कॉस्ट प्राइस इज 200. किसी स्टूडेंट को कोई डाउट इस क्वेश्चन में बच्चों? चलते हैं बेटा। फिर a shopkeeper fixes the MP of an item, that is mark price 35% above its CP. The percentage of discount allowed to gain 8% is. It's a bit tricky question. देखिए बेटा कैसे करना है। So what we have to find out? The percentage of discount, right? Is this clear? We have to find the percentage of discount. How to do this much? Shopkeeper fixes the MP of an item 35% above CP. तो यहाँ पे आप CP को assume कर लो, let the CP be तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों? X plus 35%. Yes.
Beta, no talking. If you have doubt, talk to me. So this comes out to be बच्चे 520. So this comes out to be x plus. यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट बेटा? Clear? Clear? 27. 20 plus 7x. So this comes out to be mark price is 27x over 20. right, बच्चों? So yes. Beta, now please tell me what we have to do. Now can we find out the selling price also? Yes, sir. Selling price will be cost price plus 8%. Yes or no? Yes, sir. It is clear? Yes. So what it comes out to be? Right? Forza. So what this comes out to be selling price? X plus 2 upon 25x. इसको सॉल्व करते ही कितना आ जाता है बच्चों? 25x plus x. SP हमारा कितना आ गया? 27x. over 25. मार्क प्राइस कितना था बेटा? 27x over 20. Now what he wants to know the percentage of discount allowed. Now discount कितना हो जाएगा बेटा? What will be the discount? Discount कितना होगा? MP minus SP. Yes. Yes बच्चों? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा. MP कितना है? 27 over 20x. माइनस 27x over 25. तो सॉल्व करते हैं बच्चों. SP इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा? 25. 100 आ जाएगा? No. नो 100 नहीं आएगा तो बेटा क्या आएगा इनका एलसीएम? Yes, it will be 100 or something else. Okay, it will be 100. तो 20 से डिवाइड किया 5 से 100. क्या आएगा बेटा बताइए मुझे जरा. 7x into 5. 1. 135. Okay. 27 Forza. Sir, 108. Discount 108x. is this क्या आ गया डिस्काउंट बच्चों? Yes. Now discount is always calculate on mark price. आपके पास डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है? Discount over MP into 100. डिस्काउंट और MP into 100. बेटा डिस्काउंट ओवर MP इंटू 100. बस डिस्काउंट है. ये आपके पास MP है तो हम फाइंड आउट कर देते हैं जी. परसेंट क्या हो गया? डिस्काउंट इज 27 by 100x and MP is 27 into x कैंसल हो गया. अब इनको सॉल्व करके लिखा बच्चे हमने. ये आ गया. April क्या हो गया है? यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? Sir, no. तो समझ आइए स्टेप. देखिए बेटा 27 by 100 एज इट इज. ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे 20 by 27 कैंसल हो गया. 27 over 31. 20%. Sir, 20%. ये थोड़ा लेंथी और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बच्चे. सबको समझ आ गया?
Yes. पता ही नहीं। Yes. किसके स्टूडेंट को नहीं क्लियर हुआ प्लीज आस्क। आई एम श्योर एटलीस्ट 50% बच्चों को नहीं क्लियर होगा ये क्वेश्चन। आप बताइए किस किस को क्लियर नहीं है, अदरवाइज आई शैल आस्क द क्वेश्चंस। सबको क्लियर हो गया बेटा? Yes. हरजोत चौहान, हु इज हरजोत? हाँ, Yes, sir. क्लियर है आपको? Yes, sir. कर लोगे अगर एग्जाम में आ गए क्वेश्चन तो Yes, sir. कर दे। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चे असर्शन रिजल्ट पे। प्लीज प्लीज नो टॉकिंग प्लीज। Assertion reason. First question. Assertion. The mark price of a book is rupees. The shopkeeper gives 25% discount on it. 75 is the sale price of the book. Is this correct? Yes. 100 का 25% discount is rupees 25. So what is the selling price? 75. There is some issue in the mic of 10 8th day. बच्चे कुछ साउंड आ रही है जरा प्लीज। तो assertion is true. Yes. Reason is also true. The price after the original price has been reduced by a discount is known as sale price. Yes, it is also true. Is it correct explanation? So yes. Next, its Y mark at rupees 40 is available for rupees 32. 40% discount is given on the mark price. Is this? The false. False. Now tell me, what is the discount percent? Discount percent निकालो बेटा इसमें। लोगों ने false तो बोल दिया, but false है कैसे? The 5%. 5. Discount 5% आ रहा है। Yes, sir. 5% वाला बच्चा है वो खड़ा हो जाए जरा। कौन है 5% वाला? प्लीज स्टैंड अप। हाँ जी, चौहान साहब, हरजोत चौहान। कैसे आया बेटा 5% डिस्काउंट? 20. 1 मिनट में चेंज हो गया ना डिस्काउंट, है ना? क्यों? अरे बेटा अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो शॉपकीपर लूट लेगा आपको। तो कैलकुलेट करना आना चाहिए। 30% देगा 10%। Is false. Now comes to the reason. The price on the label of an article is called the mark price. This is true. True. Yes. Option D. Haji. Question number 3. The mark price of a shirt is rupees 650. Selling price is rupees 546. And discount offered is rupees 104. True. True. Right? So reason SP is equal to CP plus profit. True. Who says it is true? Option B. B. एक मिनट। SP is equal to CP plus profit is true. But is that explanation? No. Because mark price is not there, right? Option B. Right. Now comes to the case study. A shopkeeper allows 25% discount on the mark price of the sarees and still makes a profit of 20%. Right? He gave rupees 225 over the sale of one. Following question. बेटा ध्यान से समझना जरा ये. The shopkeeper allows discount on the mark price. Okay, and profit he made. Okay. Amount. What is the profit amount? So profit. 21.
एक मिनट, नो शाउटिंग। नाउ अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी गिवन है और प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है। कैन यू फाइंड हियर कॉस्ट प्राइस? Yes. You find cost price or not? Yes. Sir, yes. Profit is always on cost price, so please find the cost price बेटा। 1125. हाँ जी बेटा, 115 आ गया। Yes. तो फार्मूला क्या होता है? Sir, P. Sir, P. to P%. हाँ जी, Sir, P over CP into multiply by P over, अरे P क्या है यहाँ पे? P परसेंट लेना है या P लेना है? P%. profit. Sir, profit. Sir, profit. Only profit. Profit percentage, profit percent into 100. परसेंट लिख ली तो फिर 100 की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ओवर प्रॉफिट परसेंट ही हो जाएगा बच्चे। ये प्रॉफिट इज 225। अगर प्रॉफिट परसेंट लिख रहे हैं तो 20/100 होता है ना, इसका मतलब 200. क्लियर? तो कॉस्ट प्राइस कम्स आउट टू 1125. 115। Sir, D option. D option. D option. Please, P is 1125. no talking, no discussion, please। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया बेटा, कॉस्ट प्राइस निकाल दिया हमने। Yes. सेकंड में द सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी, बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको कॉस्ट प्राइस आ गया, आपको प्रॉफिट भी पता है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा जी। CP प्लस कितना आ जाएगा? 225. 225. मेरा हो गया. P is 1350. D option. कौन सी ऑप्शन आना चाहिए? बी ऑप्शन। D option. Now we have to find the mark price. How to find the mark price? He is offering how much discount? 25%. The mark price be X. X minus 28% of X. 5% of X equals to 1350. Right? Solve करें इसको बच्चे। 3/4x. बाकी लोगों को भी करने दो। एक बच्चा पहले से करके आंसर बोल देता है, बाकी बच्चे कर नहीं पाते हैं। Please don't speak the answers. Okay. डिस्कशन फ्रंट पैन सेक्शन है, सेंटर वाली लाइन कंटिन्यूअसली बातें चल रही हैं। चाहे क्वेश्चन ही डिस्कशन कर रहे हो बट कंटिन्यूअस है। हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? प्लीज रेज योर हैंड। Done. 1 2 3 4 5। बाकी बच्चे जल्दी से कीजिए बेटा। ऑल अदर्स प्लीज डू इट। प्रेजेंट प्लीज रिक्वेस्टेड टू प्लीज चेक वेदर दे आर डूइंग इट और नॉट। कैसे करेंगे? 1800. 1800. Sir, 1800. Minus 35% of X equal to 1350। 50. आ गया बेटा X minus X by 4। X minus x over 4 is equal to 1350. क्या आएगा? 3x over 4. 4x minus x is equal to 1 By 4. 3x over 4 equals to 1350. X equals to 1350 into 4 over 3. 50 into 4 over 3 cutting of 3 4 50 equals to 1800.
Next is what is the difference between mark price and selling price? 450, right? And if the discount offered is 50%, then what should be the mark price of the sari? Rupees 2700. 27. क्लियर है जी ये चीज? बेटा सेलिंग प्राइस तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस So 50% of x equals to x minus SP 1350. 27. Minus 1350. तो 2700 आ जाएगा. Is it clear? So yes. Everything is clear in this. Now you people have doubts in simple interest. Yes. Sir, no compound interest. देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि होता क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे. हाउ बैंक्स वर्क्स. प्लीज लिसन. I said stand नाउ. हाँ जी. Two students, please stand up. One from section A, one from section B. Any two students. एक section A से खड़ा हो जाए, एक section B से हो जाए. Who is the class monitor of both the section? Please stand up. Class monitor of both the section. और mic पे आ जाए दोनों लोग. वो समझा करो. Please. हाँ जी. So section A. What is the name of the student? हाँ जी. बच्चे अपना नाम बताना है, आपको किसी और का. अनमोल. Right. And section B. Good morning, sir. Good morning, beta. Please tell Sir, my name is Helene Kaur. me. Right. Now, take an example. Right? Okay. Let's say Anmol has rupees 1 lakh. You have rupees 1 lakh. You go to a. Bachche, please listen. Right? Actually, sir, their mic there is a mic problem in 8A class. Yeah, I think so. We do one thing. Anmol, you please sit down, and we take two students from section B. Okay, disturbance now, better to prevent the disturbance. You are a rich person now, right? So, anyone boy from section B? A, please switch off your mic because it is causing disturbance, right? So section A, हाँ जी, रोल नंबर 10 आ जाए, कोई भी है. आ जाओ आप ही आ जाओ बेटा, आ जाओ प्लीज. हाँ जी, आपका क्या नाम है बेटा? So myself Prabjot. Prabjot has rupees 1 lakh. ठीक है? He goes to the bank and deposit this amount in the bank. Is this clear? Yes. Right? Let's say that bank offer 10% interest on this amount for every year. Is this clear? Yes. Right? Suppose bank is giving you 10% discount, simple interest. Right? Now, what bank will do? बैंक ने अपने पास तो रखने नहीं होते बेटा पैसे, ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोन देता है. So then in that way they also earns. So let's say bank give this 1 lakh rupees to Harleen as loan, right? इनको यहाँ पे लोन मिल गया 1 lakh rupees. But that loan is on compound interest. Is this clear? Yes. Clear? Now, how much amount as an interest
Prabjot will get after 1 year? Tell me, बच्चों. Interest after 1 year. Interest received. Please tell me, बच्चों. Yes, sir. Find it. Raise your hand. After 1 year, but Sir, simple interest will be 10,000 and the amount will be 1 lakh and 10,000. I'm talking about interest only. So this will be 10,000. now. How much interest rate is same for Harleen also 10%. After 1 year? Yeah. How much interest Harleen has to pay after 1 year? How much interest Harleen has to pay after 1 year? Calculation की जरूरत नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है. It will be 10,000 only. Yes. So yes. Yes or no? Sir, yes. Interest payable. कितना हो गया बेटा? 10,000. 10,000. Right. For next year, for second year, how much interest Prabjot will get? How much interest Prabjot will get? 10,000 पर लगेगा थोड़ा सा. Simple interest. हाँ जी दसो. Sir, wait. तो बेटा कुछ भी नहीं करना, सेम अमाउंट रहेगा एवरी ईयर. सिंपल इंटरेस्ट है. Sir, सर वो 1 लाख 10,000 पर पड़ेगा जो 10% फिर से बढ़ेगा. अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? It will be same throughout the tenure. This is what about simple interest? What is simple interest? Only the interest on the amount deposit. Actual में ऐसा नहीं है. I am taking an hypothetical example. So it will be same, beta. For second year also you will get 10,000 rupees interest. Sir, yes. How much Harleen has to pay in the second year? How much Harleen has to pay in the second year? Sir, 10,000. 10,000. नहीं बच्चे बैंक लूट जाएगा आपके 10,000 लेगा तो. बच्चे अमाउंट कितना हो गया नेक्स्ट ईयर? Sir, 1,10,000. yes. Yes or no? So now Yes. interest will be charged on this amount, not on the principal. Is this clear? Sir, yes. So how much interest she has to pay? 10% of 1,10,000. How much rupees? 11,000. Yes or no? Sir, yes. Yes. 11,000. What is the profit for bank? Is 1,000. Sir, yes. समझ में आ रहा है बेटा क्या डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में? ठीक है जी. हम क्या कहते हैं बेटा, इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हो? ब्याज. तो ब्याज पे जो ब्याज, इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लग रहा है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट इज whatever is the loan amount, the interest on that only. Is this clear? Yes. Have you understood what is the difference between beta simple interest and compound interest? Yes. ये वाले केस के अंदर 20 साल के बाद भी जो इंटरेस्ट आएगा वो 10,000 ही आएगा. बट here every year this interest will keep on increasing. समझ में आ रहा है? Sir, yes. Yes. आफ्टर 3 years यहाँ पे कितना इंटरेस्ट आएगा? अगेन 10,000. और यहाँ पे Yes. मुझे कितना आएगा बेटा? हाउ मच इंटरेस्ट विल बी देयर इन द थर्ड दिस Sir, wait. केस? अब इसमें ऐड कर दिया बेटा 11,000 आपने अमाउंट में. Sir, yes. कम्स 1 lakh 21,000. 21,000. 1 lakh 21,000. 21,000. So what will be the interest payable after 2 years? 12,100. 12,100. So can you see that every year interest is increasing? Yes or no? Every year interest is increasing, बच्चों. So that is known as बच्चे compound interest. Is this clear? Yes. आपको क्लियर हुआ बच्चे क्या कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? Yes.
कि जो जनरली वर्क करते हैं वो देखिए, ये उनका वे नहीं होता वर्किंग का। उनका वर्किंग का वे क्या होता है कि व्हेन यू डिपॉजिट सम अमाउंट, दे ऑफर लेट्स से द 7% इंटरेस्ट, बट व्हेन दे लैंड द मनी, मतलब जब आप उनसे लोन लेते हो तो दे चार्ज 10%। तो बीच का जो 2-3% का गैप होता है, दैट इज देयर अर्निंग। दिस इज क्लियर? Yes. So this is the way of working of banks, right? Have you understood, बच्चे, what is compound interest, simple interest? So yes. ये आप क्वेश्चंस पे आते हैं हम। अब क्वेश्चन कैसे करने, प्लीज सिट डाउन बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। I hope you people would have understood in a better. Thank you, sir. हाँ जी बच्चों, any doubts you people want to know from me, or I shall ask the question? I shall take some questions बच्चे। अगर आपको कोई भी डाउट है, you are free to ask the questions. Okay, So no sir. doubt. Question on simple interest or compound interest, feel free to ask. Or otherwise, I'll take 2-3 questions. Tell me what you want to do. So no doubt. अभी तो आप कह रहे थे बहुत सारे डाउट हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सर अभी हो गई क्लियर। अच्छा, मैंने इतना अच्छा समझा दिया। Yes. ठीक है जी। चलिए फिर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ बेटा आपको एक दो। कंपाउंड इंटरेस्ट, चलिए बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए बेटा। ये सम अमाउंट्स टू, अभी लैंग्वेज बड़ी टिपिकल होती है यहाँ पे। ये सम अमाउंट्स टू रुपीज 756.25 पैसा at 10% per annum in 2 years. Compounded annually. अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है ये कंपाउंडेड एनुअली क्या होता है? हाँ जी बच्चों, यस और नो? So no. देखिए बेटा, मैंने जो आपको एग्जांपल कोट किया था उसके आपने क्या देखा कि हमने जो इंटरेस्ट ले रहे हैं ना बेटा, कंपाउंडेड एवरी ईयर होता है। ठीक है, मीन्स जैसे 10,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज हमने बच्चे टोटल लिया, 10,000 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। So yes. अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। बट जनरली क्या होता है बैंक्स में, इंटरेस्ट की जो कंपाउंडिंग होती है आफ्टर एवरी क्वार्टर होती है, मतलब आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 10%। 10%. 1 लाख रुपीज आपने लिए, राइट? सो 10% इज फॉर 1 ईयर, So yes. right? So what will be the interest for 3 months? Sir 3/12. 3/12। तो कितना बन जाएगा बच्चे? 3/12 ऑफ 10%, मतलब 1/4 ऑफ 10%। So yes. So that will comes to 2.5%. So this much interest will be calculated on this amount. कितना हो गया बेटा? 2.5%। आपकी जो इंटरेस्ट रेट है ना बेटा, उसको आपने 4 से डिवाइड कर दिया। इफ इट इज कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, देन यू डिवाइड इट बाय 2। समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा जी? अच्छा चलो हम एक काम करते हैं, 1 साल का इंटरेस्ट कितना था बेटा? Sir 10,000. तो 3 मंथ्स का कितना होगा? 1/4. 1/4 कितना बना बेटा? 2,500 रुपीज हो गया। Yes. यहां तक सबको समझ आया बेटा? Sir अगर yes. 1 साल का इंटरेस्ट 10,000 है तो 3 मंथ्स का कितना हो गया? 2,500. तो नाउ
आपकी जो कंपाउंडिंग होगी ना बेटा आफ्टर एवरी 3 मंथ्स होगी। तो 1 lakh plus 2,500, how much it becomes to? This much amount. Yes. अब मैं यहाँ पे मैंने एक ईयर बना दिया बेटा, ये स्टार्टिंग है, यहाँ पे 1 ईयर फिनिश हो रहा है। हमने 4 इसके क्वार्टर्स बना दिए। सो नाउ यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल था वो कितना था बेटा? 1 लाख। अब सेकंड क्वार्टर पे जो आपका प्रिंसिपल कितना बन जाएगा? 1,25,500. 1,02,500, right? Right? Now, interest will be calculated on this amount now for next quarter. What will be the interest now? इसका 10% कितना हो गया बेटा? 250. इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, कितना आ गया? Sir, yes. डिवाइडेड बाय 4 ना, क्योंकि क्वार्टर का इंटरेस्ट निकालना है ना बेटा हमें। क्वार्टर मींस 3 मंथ्स। यस, 4 से डिवाइड कर दो, सिंपल सा है बेटा। थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको इनिशियली, बट वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट इट विल बी इजियर। हाँ जी बच्चा, जल्दी से बताइए कैलकुलेट करके। ये लकी बच्चे 2562.50 आ रहा है। Sir, yes. 25625. 0.25 Sir, yes. आ रहा है बच्चों। तो देखो पहले क्वार्टर में हमें इंटरेस्ट कितना आया था? दिस मच। सेकंड क्वार्टर में कितना आया? This much. तो अब अगले क्वार्टर के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए जो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस, इसमें ऐड कर दोगे। समझ में आ रहा है? Yes. तो जो 1 ईयर का इंटरेस्ट है ना बेटा, इट इज मच मोर देन 10,000 रुपीज फॉर 10%, बिकॉज इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। बेटा बेटा प्लीज एनी टाइम इफ यू कैन हैव द एक्सेस, अपने पेरेंट्स का सेविंग बैंक अकाउंट की जो है ना पासबुक होती है, उसमें देखना आफ्टर एवरी क्वार्टर कब फिनिश होता है इंडिया में? 30th जून, 30th सितंबर, 31st दिसंबर एंड 31st मार्च। इन 4 डेट्स पे आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होता है। इज इट क्लियर? Yes. You have understood? Now we come back to the question. क्वेश्चन क्या था बेटा? A sum amounts to rupees this at 10% per annum in 2 years. Calculate the sum. Sum मतलब प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। फार्मूला आपको आता है बच्चे अमाउंट का? Sir, yes. क्या होता है बेटा? Equals to P into 1 plus R over 100 raised to power n. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। एक ही वैल्यू कितनी है? 756.25 equal to P into 1 plus 10 over 100 into 2. इसको सॉल्व किया तो कितना बन गया बच्चों? Sir, wait. 7, इसका डेसिमल हटा दे बच्चों। Yes. हमने भी हटा दिया सर। ये बेटा 11/10 बन गया। Sir, yes. इज दिस क्लियर? Sir, yes. इसको सॉल्व कर लो आगे, बस सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। Sir, yes. Sir, करने दो। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बच्चों। 7 5 6 2 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 into 10 100 ऊपर आ जाएगा बच्चे। 100 ऑलरेडी इज देयर। इज दिस क्लियर? Yes. इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। 11 6 66 and 9 96, 8 the 8 बचा 82, then 7, then 5। 11 से कट हो जाएगा ये 6, then 2 22, then 5।
So what is the principal? 625 rupees. Understood बच्चे question? So yes. Anything not clear बच्चों? So clear. Right बच्चे? So now ma'am will take your science class. So thank you very much for joining. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Yes, good morning, students. Good morning, ma'am. पता नहीं है सब. Really good to know. How are you all? We are fine, ma'am. How are you, ma'am? I'm also good. Thanks for asking, beta. So, good to see you all here once again. So, what we learned last time, beta? Who can tell me? क्या पढ़ा था हमने? Sir, refraction. Question में हमने क्या पढ़ रहे थे last time? What we were discussing? याद है आई का कहाँ पर हमारी इमेज बनती है? Retina.
That's good. So we learned about retina. Till retina we learned. Yes. Accommodation is done. Accommodation part is also done. No. Okay. So that is what we are going to discuss today. ठीक है ना? No noise. आवाज नहीं. Iris pupil we have learned. Iris and pupil. Yes. So different eye lens color is due to. Iris. And what is the role of pupil? It allows the light to enter our eyes. Light enters the eye. Quite. So we have learned till this. ठीक है? So now let's move ahead. So we have learned about this part. ठीक है? हमने यहाँ तक पढ़ा. So this is retina, that is the screen where image forms. And this image, अभी जो हम कुछ भी अभी हम देख रहे हैं, we can see each other also. That is going inside our brain also. मुझे अपने ब्रेन से पता चल रहा है ये 8 है या 8B है. आपको पता चल रहा है ये मैम है ना? ऐसा तो नहीं है फोटो क्लिक होके बस वहीं बैठ गई है. इट इज गेटिंग इंटरप्रेटिंग ऑल्सो. मतलब ये कुछ कन्वर्ट भी हो रही है. किसमें कन्वर्ट हो रही है? जो हम देख रहे हैं दैट इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल. अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ जाता है? वो ब्रेन में जाता है. और ब्रेन हमें कहता है जो हमने देखा है वो है क्या, हमने उसके अगेंस्ट या फिर उसके लिए क्या चीज करनी है. ठीक है? सो दैट इज डन बाय आवर ब्रेन. बट हियर द चैनल और a passage that is called optical nerve or optic nerve. ठीक है? It is present here. Role of optic nerve is what? To convert light into electrical signal. Write down. It convert light into electrical signal. Light into electric signal. ठीक है? और that electric signal finally reaches where? In our brain. ठीक है? हमारे ब्रेन में जाता है. अब यहां से एक और चीज आती है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहां पर ये हमने कहा ये पूरा रेटिना था, अब यहाँ से ऑप्टिक नर्व भी निकल रही है. ठीक है? अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है हमारी जो है इमेज फॉर्म होती है. रेटिना, पूरे रेटिना में हमारी इमेज फॉर्म नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है. And that point is called centrophobia. It is called centrophobia. तो यहाँ पर रेटिना के इस पार्ट में जाके जो है हमारी इमेज फॉर्म होती है. Okay, here image forms. Centrophobia. Got it? Yes. अब लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से तो ऑप्टिक नर्व भी आ रही है. अगर ऑप्टिक नर्व मैं कहती हूँ एक तरह से पाइप है. ठीक है? एक पाइप है. अब पाइप की एक ओपनिंग होती है जो कि क्या होती है? खाली होती है. Yes. रेटिना है बेटा, ये जो रेटिना और ये जो ऑप्टिक नर्व है इसका ये जो पॉइंट है, ठीक है, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, इतने से पॉइंट पे जो है इमेज फॉर्म नहीं होती. Blind spot. इसको हम कहते हैं ब्लाइंड Blind spot. यहाँ पर इमेज नहीं बनती. ठीक है? ये वो पॉइंट है जहां पर आपको इमेज नहीं दिखेगी. ठीक है? तो ये था, हमने आइस का हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. हमने यहाँ पर लेंस पढ़ लिया था. यहाँ पर हमने पढ़ लिया था ये आइरस है. ठीक है? देन यहाँ पर ये जो है प्यूपिल है. देन यहाँ पर इसी के साथ जो है कुछ मसल्स होती है. व्हाट डू वी कॉल इट? मसल्स. ठीक है? अब मुझे बताओ जो हमारे आंख के, अगर आंख को आप देखते हो, खैर सभी को पता होगा, जो लेंस है उसके चारों तरफ व्हाइट पार्ट है, उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया. पक्का? श्योर? दैट्स रियली गुड. यू ऑल आर सो इंटेलिजेंट. हाँ,
तो यस, यहाँ पर जो आगे एक लेयर व्हाइट कलर की जो लेयर है इसको हम कहते हैं स्केलरा। और स्केलरा के आगे कौन सी लेयर होती है? कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट लेयर, एकदम जेली जैसी, ठीक है, जैसे पॉलिथीन सेलोफेन आता है ना वैसे। ठीक है, तो इसके भी आगे एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। अब कॉर्निया का क्या काम है, क्यों है कॉर्निया हमारे उसमें? It अगर हमारे prevents our eye from dust. ऐसी कोई कूड़ा आता है, आंधी चल रही है, कुछ हो रहा है, तो सीधा हमारी आंख को डैमेज ना करे, तो वो जो है एक बैरियर होता है दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम जर्म्स, डस्ट एक्सेट्रा। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग हैपेंस हियर, रिफ्रैक्शन। हमारी आंख में रिफ्रैक्शन होती है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हैपेंस वेयर? थ्रू वेयर? कॉर्निया। ठीक है, यहां से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हैपेंस। ठीक है, सो दैट इज द रोल ऑफ कॉर्निया बेसिकली। अब कई बार क्या होता है बेटा, हमारे आई लेंस और कॉर्निया जो है उसके बीच में कई बार म्यूकस, म्यूकस समझ लो थोड़ा सा पस हो गया, या पानी हो गया थोड़ा व्हाइटिश सा, या पाउडरी सब्सटेंस हो गया, वो इकट्ठा हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊं, सपोज कर लो दिस इज अ लेंस, ये हमारा लेंस है, ठीक है, इसके आगे ये हमारा कॉर्निया, मैं स्क्लेरा नहीं बनाया, मैं सीधा कॉर्निया पे आ गई हूँ। ठीक है, कॉर्निया है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है या म्यूकस इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पर पाउडर। अब उसकी वजह से क्या होगा, हमें दिखना थोड़ा धुंधला हो जाएगा, हमें ना स्ट्रेन पड़ेगा, कुछ भी देखते हुए हमें जोर लगेगा। और इसको क्या कहते हैं, इस बीमारी को कैटारैक्ट। क्या कहते हैं? Cataract. ठीक है, दिस इज ए कैटारैक्ट। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो म्यूकस इकट्ठा हो रहा है दैट इज ए कैटारैक्ट, और हिंदी में से हम कहते हैं सफेद मोतिया। कई बार आपने सुना होगा अपने बुजुर्गों से कि हमें सफेद मोतिया हो गया है, तो वो ऑपरेशन कराने चले आते हैं। उनका जो आई लेंस चेंज होता है, दैट्स हाउ दे कैन करेक्ट इट। सो दिस इज कैटारैक्ट। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes. यस। अब आ जाते हैं, जो हमारी इमेज की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा साफ करते हैं so that we can make it more clear। ठीक है, ये हमारा रेटिना हो गया, ये हम अभी सारा इरेज कर रहे हैं, सबने बना लिया था ये? गुड, वंडरफुल। तो इसकी थोड़ा सा पूरा ही इरेज करते हैं, लेट्स ड्रॉ इट अगेन। ठीक है, अगेन लेट्स ड्रॉ इट अगेन। अब इसको हम दोबारा बनाते हैं। ये हमारी आईज है, ठीक है, ये हमारा रेटिना है, ये हमारा आई लेंस है जो कि फोकस करता है लाइट को। ठीक है, इट्स रोल इज टू बेंड एंड फोकस लाइट। रोल ऑफ लेंस इज टू बेंड एंड फोकस लाइट। अब जो लाइट आ रही है, ओके, लाइट इज कमिंग फ्रॉम द लेंस। ठीक है, जैसे ही लेंस पे आती है, अब वो हमारा लेंस क्या है, आई लेंस है कौन सा, कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है? Convex lens. कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग? Converging. कन्वर्जिंग मीन्स इकट्ठा करना या स्कैटर करना? इकट्ठा करता है. इकट्ठा करता है। तो ये जो लाइट अलग लगती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, उसको क्या करेगा, रेटिना पे Converge. कन्वर्ज। देखो इकट्ठा कर दिया एक पॉइंट पे आके। ठीक है, लाइट यहां से आ रही थी, इसको रेटिना पे, ठीक है, कहां पर हुई है ये, इन रेटिना। और रेटिना में आपको पता है ये कहां पर होती है, इमेज कहां बनती है? Centrophobia. Centrophobia. टेट्राफोबिया पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, नॉर्मल आई। इसको पहले बनाओ नॉर्मल आई करके, इट्स अ नॉर्मल आई। जो हमारी सही आंखें हैं, अगर कोई चश्मा वगैरह नहीं लगा, देन इट वर्क लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसे काम करेगी, इट विल वर्क लाइक दिस। क्योंकि इसके बाद जो हम बनाएंगे वो इसी के रिलेटेड होगा, इसी से रिलेटेड हम बनाएंगे। Yeah.
Is that clear? सबका बन गया? Have you drawn this? Yes. So now let's move. Okay. अब मुझे ये बताओ, सबके पास नोटबुक है? Everyone is having notebook? Yes. अब जरा नोटबुक को ऐसे उठाओ और पढ़ो, जरा दूर से पढ़ो, दूर से पढ़ो। आंखों में कुछ हो रहा है? छोटी करनी पड़ रही है? यस? Yes. दूर करने पे छोटी करनी पड़ रही है टेक्स्ट पढ़ने के लिए, या बड़ी करनी पड़ रही है? बड़ी करनी पड़ रही है आगे, छोटी करनी पड़ रही है? बड़ी। चलो थोड़ा पास ले आओ, इसको पास ले आओ। क्या पड़ रहा है? छोटी या बड़ी करनी पड़ रही है? छोटी। अच्छी बात है। अब जरा एकदम ही पास ले आओ। क्या अब पढ़ा जा रहा है? अब कौन जो है अपने नाक के पास लाके भी पढ़ पा रहा है? पहले तो ये बताओ। उस बच्चे को मिलना चाहूंगी जो इतने पास से भी पढ़ पा रहा है टेक्स्ट, क्योंकि नॉर्मल। ठीक है, चलो अब हमने ये क्या किया, जब कोई चीज दूर है, ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा, जब कोई चीज दूर है तब हमारी आंखों में क्या होता है, जो लेंस है, जो प्यूपिल है, वो बड़ा होता है उसको, ताकि जो है वो पढ़ सके, उसको देख सके। ठीक है, अब वो कैसे होगा, जो हमारा आई लेंस था, ठीक है, ये हमारा आई लेंस है, इसको किसने होल्ड कर रखा है? सिलियरी मसल्स। Muscles. ये सिलियरी मसल्स हैं जिन्होंने इसको होल्ड कर रखा है। ठीक है, अब जब हम दूर का देखते हैं तब क्या होता है, ये लंबा हो जाता है, क्योंकि हमने बड़ा करना है ताकि हम जो दूर का ज्यादा पढ़ सकें या देख सकें। तो ये नॉर्मल आई है। ठीक है, अगर हम दूर का देख रहे हैं, इन केस ऑफ फार, तो सपोज कर लो ये जो सिलेरी मसल्स हैं, बेटा शोर मत करो, ध्यान से सुन लो, ये आपके काम आएगा। अगर कोई दूर है चीज तब क्या होगा, जो सिलेरी मसल्स है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स मतलब वो थोड़ी ऊपर को हो जाएगी, और जो हमारा आई लेंस है वो पतला हो जाएगा ऐसे, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा वो देख सके। ठीक है, दूर की चीजें हमें ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे। ठीक है, दूर के केस में। अब आ जाते हैं जब हम पास की चीज की बात करें, अगर कोई चीज पास है, ठीक है, नियर है, जैसे अभी हमने बुक ली थी थोड़ी पास, तो हमें आके छोटी करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? सो लेट्स सी हियर, जो ये सिलेरी मसल्स हैं वो क्या करती हैं, Contract. इससे उसको ऐसे दबाती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसे बल्ज आउट कर देती है। जैसे आपके पास कोई बॉल होती है ना, स्क्विश सी, वो जली सी वाली जो आती है, उसको अगर कर दो तो आगे को ऐसे निकल के आ जाती है, तो वैसे जो है ये थोड़ी मोटी हो जाती है, बल्ज आउट हो जाती है। अगर ये ऐसे है तो ये और ऐसे हो जाएगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बल्जिंग आउट। तो अब हमारी जो आई लेंस है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपनी जो शेप है, साइज जो है, उसको एकोमोडेट करता है, उसको एडजस्ट करता है, ताकि जो है वो चीजों को ध्यान से देख सके। ठीक है, और कहां तक की चीजें हम सही से देख सकते हैं, दैट इज अप टू 25 centimeter to infinity. हाँ 25 सेंटीमीटर वाला ही जो है हम ध्यान से देख सकते हैं। उससे पास ज्यादा लेके आओगे, क्यों नहीं देख पा रहे अब हम, क्यों नहीं देख पाएंगे? अगर 25 से और पास ऐसे हम लेके आने तो हमें क्यों नहीं दिख रहा? अगर आपके पास कोई चीज है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मेरे पास ये रोल है बेटा, इसको मैं दबा सकती हूँ। ये सपोज कर लो ये हमारा आई लेंस है, जस्ट इमेजिन दिस इज आवर आई लेंस और दीज आर सिलेरी मसल्स। अब ये थोड़ा सा प्रेस मैं कर सकती हूँ, ये देखो थोड़ा सा होगा मुझसे, ये थोड़ा सा हुआ, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। इससे ज्यादा सिलियरी मसल्स आई लेंस को प्रेस नहीं कर सकती, इससे ज्यादा हमारा लेंस बल्ज नहीं हो सकता।
आईज जो है उससे ज्यादा अपने आप को स्ट्रेन नहीं डाल सकती कि वो जो है इतने पास का ऑब्जेक्ट देख सके। ठीक है, तो क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि सिलेरी मसल्स उससे ज्यादा प्रेस नहीं कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। गॉट इट? So that's the reason. ठीक है, so that's the reason, that's why we are not able to see objects that are more near to us as compared to 25 centimeter. ठीक है, so that is the reason. तो इसको हम क्या कहते हैं? accommodation of the eye. So लिखो accommodation of eye क्या होता है? The ability of the eye. Please repeat. Silent, be silent. ठीक है, the ability of the eye to adjust, the ability of eye to adjust the focal length of its lens, the focal length of its lens, so that it can see all the objects, so that it can see all the objects. फिर से बोल रही हूँ, the ability of the eye, the ability of the eye to adjust the focal length, to adjust the focal length of its lens, so that it can see all the objects, so that it can see all the objects, it can see all the objects within a certain range, within a certain range. रेंज क्या है? पास की क्या है? 25 to infinity. ठीक है, 25 centimeter to infinity, bracket close, within a certain range, in bracket 25 centimeter to infinity, bracket close, is called accommodation of the eye, accommodation of the eye. ठीक है, तो कितना हम देख सकते हैं, हमारी आंख कितना जो चीजों को देख सकती है और कैसे देख सकती है, दैट इज accommodation of eye. ठीक है, अब मुझे बताओ, आप में से सभी ने किस किस ने चलो तारे जमीन पे देखी है? हैंड रेस करो. टॉकिंग अबाउट द मूवी तारे जमीन पे. सिर्फ 8वीं वालों ने देखी है? 8th? अच्छा, आप अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा आपसे, व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन? उसमें आपने देखा होगा उस बच्चे ने, वेट, उस बच्चे ने, जो उसमें एक करेक्टर था, उसको जो था क्या पसंद था? उसको ड्राइंग करना पसंद था. जब वो हॉस्टल गया तो उसने, जो उसकी एक बुक थी, ड्राइंग बुक थी छोटी सी, उसमें उसने जो है बनाई हुई थी फोटोज, जिसमें वो पास से दूर होते दिखाया गया अपने पेरेंट्स से. अब ऐसा क्या था कि हमें वो चीज जो है एकदम से वो स्टोरी फॉर्म में दिखी? तो क्यों दिखी? अगर वहां पर उसमें कैसे था बेटा, ऐसे उसने ऐसे दिखाया था, अगर आपने देखा होगा हीरो ने बच्चे की ड्राइंग ऐसे करते हुए दिखाई थी फटाफट, तो हमें वो पूरी स्टोरी समझ आ रही थी कि वो क्या बताना चाह रहा है बच्चा, ऐसे. ठीक है, घर जाके आप दोबारा देख भी सकते हो वो चीज, इतनी सी क्लिप निकाल के. तो ऐसे करने से अब ये क्या हो रहा है? ऑफ विजन. अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगी, कितनों को ये पेज याद रहेगा? किस को पेज याद रहेगा कि इस पेज में ये चीज लिखी थी, इस पेज में ये चीज लिखी थी? या फिर मैंने अभी ये जो ड्राइंग बनाई है, वापस मैं इसमें जाती हूँ, फिर मैं इसमें आती हूँ, कितनों को ये चीज याद रहेगी? को याद रहेगी और कितनी देर तक याद रहेगी? लेस देन. अब कोई चीज आपको कितनी देर दिखे कि आपको वो चीज आपके दिमाग में रहे, दैट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन. सो राइट डाउन, पहले लिखो इसके बारे में. when an image is formed, when an image is formed on the retina, comma, it stays for about 1/16th of a second. It stays for about 1/16th of a second.
This is called persistence of vision. अच्छा, Please repeat again. when an image of an object formed on the retina, comma, it stays for about 1/16. It stays for about 1/16 of a second. तो कोई भी चीज अभी आपको दिख रही है वो आपके रेटिना में सिर्फ 1/16। तो तभी हम कोई चीज पहली बार देखते हैं ना तो हम भूल जाते हैं कुछ टाइम बाद, क्योंकि वो आपके दिमाग में या फिर आपके रेटिना में कितनी 1/16 ऑफ सेकेंड से भी इतना हिस्सा हुआ 1/16। और वही चीज अगर हम मल्टीपल टाइम देखते हैं क्योंकि हम एक साथ इतना देख रहे हैं तो हमें वो एक ही चीज लगती है। दैट्स वाई। अब आ जाते हैं हम कंसिस्टेंस के बाद, एकोमोडेशन के बाद जो हम डिफेक्ट्स कर रहे थे ह्यूमन आई पे, ठीक है, डायग्राम किया था। अब हमने कहा कि इमेज बनती है सेंट्राफोबिया पे, ठीक है, फोबिया भी बन रही है। एक मिनट बेटा, आपके यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। अब क्या होता है, कई बार किसी कारण आई डिफेक्ट्स में इमेज जो है इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग ऑन हियर सेंट्राफोबिया या तो पहले बन जाती है या तो वो सेंट्राफोबिया के बाद में बनती है, ठीक है, या तो पहले आगे बन गई या फिर बाद में बन गई। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज है, क्योंकि अब वो बन या तो पहले रही है बाद में बन रही है, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा जरा सोचो, अब जो ये लाइट है ये यहाँ पर होने की बजाय अब यहाँ पर अगर मिलेगी तो क्या होगा बेटा, क्या होगा? ये जो लाइट रेटिना पे जाके कन्वर्ज होनी थी अब वो यहाँ पर पहले कन्वर्ज होगी तो क्या होगा, हमें दूर का कम दिखेगा या पास का? सोचो कौन सी चीज हमें ज्यादा सही दिखेगी और कौन सी नहीं दिखेगी। अगर सेंट्राफोबिया से पहले कन्वर्ज होता है तो क्या होता है बेटा? Myopia. मुझे नहीं सुनना मायोपिया क्या होता है क्योंकि मैं अभी तक वहां तक आई नहीं। मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पर फोकस हो रही है लाइट, अब यहाँ पर फोकस हो रही है तो हमें पास की चीज सही दिखेगी या दूर की? इसको कैसे याद रखेंगे? आई लेंस के पास हो रही है क्योंकि आई लेंस के पास है, ठीक है, पहले है रेटिना से पहले और आई लेंस के पास आ गया थोड़ा और, तो हमें पास की चीजें ध्यान से दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। अब यहाँ पर ये आई लाइन से दूर हो गया है, देखो फोकस आई लाइन से दूर हो गया है तो कहाँ की हमें सही दिखेगी? दूर। अब इसी को हम जरा ध्यान से कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स ड्रॉ दिस। बेटा सभी ने ड्रॉ भी करना है इसे, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ये हमारा आई लेंस है, ठीक है, दिस इज आवर आई लेंस। अब क्या हो रहा है, जो हमारी, अगर हम कहें कि अब हमने ये कहा कि जो मायोपिया है, ठीक है, आप लोगों ने जो वर्ड यूज किया मायोपिया कि वो जो है इसमें हमें पास का दिखता है। क्यों पास का दिखता है, दूर का क्यों नहीं दिखता? और यहाँ पर क्यों फोकस हो रही है लाइट, क्यों हो रही है, रीजन व्हाट इज रीजन क्या है बेटा, व्हाट इज द रीजन? Ma'am, good morning, ma'am. बेटा Ma'am, because the size of the eyeball becomes larger, so that's why the image is formed in front of the retina in myopia. आई लेंस बिकम लार्जर,
eyeball. Eyeball is larger. And what about eye lens? My lens is of same size. अगर पास का हम कह रहे हैं, पास का हमें दिख रहा है, तो पास में हमारी आई लेंस बल्ज होता है या नहीं होता? छोटा होता है? Yes. है? तो अब इसको हम थोड़ा सा इसको कर सकते हैं, हम यहाँ पर दिखाते हैं पहले. सो लेट्स डू इट. तो यहाँ पर इन्होंने सही बताया कि पहले जो है हम इसको आई बॉल को थोड़ा सा इलोंगेट कर देंगे, ये ऐसे बड़ी सी होगी. ठीक है. दूसरा हमारा जो आई लेंस है वो बल्ज आउट हो गया. ठीक है. इसको हम थोड़ा बल्ज कर देते हैं. सब इसको ड्रॉ करो बेटा, इसको हम ऐसे बल्ज कर देते हैं. अब क्या होगा, जो लाइट आ रही है यहां पर, ये लाइट आई. अब क्योंकि ये छोटा हो चुका है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, छोटा होने की वजह से लाइट भी क्या होगी, एकदम एंड टू एंड आएगी. उसकी वजह से जो रेटिना की बजाय जो लाइट है वो कहां पर गिर जाएगी, यहाँ पहले. जबकि होनी कहाँ चाहिए थी, सेंटर ऑफ फोबिया, जबकि वहां पर नहीं हुई. क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या चीज हो गया, आई लिखो. आई बॉल क्या है, Smaller. आई बॉल की बात कर रही हूँ, आई लेंस की नहीं. आई बॉल क्या है, इलोंगेटेड. ये देखो, ये इलोंगेटेड दिख नहीं रहा, इलोंगेटेड. Yes. ठीक है. दूसरा क्या हो रहा है, आई लेंस. Lens becomes smaller. आई लेंस बल्ज आउट लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं मोर कर्वेचर. बल्ज आउट या मोर कर्व. ठीक है. अब इस दोनों के कारण क्या हो रहा है, जो हमारा फोकस है, ठीक है, वो कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, इंस्टेड ऑफ सेंटर ऑफ फोबिया. तो ये हमारा होता है किसे, इस टाइप की बीमारी को या इस टाइप का आई डिफेक्ट को हम कहते हैं मायोपिया. ठीक है. इसको और भी कहते हैं शॉर्ट Sightedness. sightedness. ठीक है. Called by this name also. क्या ये हो गया. अब ये बताओ, अगर किसी को मायोपिया है या किसी की मायोपिक आई है, उसको अगर हमें सही करना हो, सही करना मतलब क्या हो गया, सही करने का मतलब हमारा होता है बेटा, यहाँ पर ये जो हमारी लाइट है तो यहाँ पर गिर रही है, वो कहाँ पर गिरे, जो रेटिना है उस पे. हमने जो आईज जो है, इसको जो है लाइट को कहाँ लेके आना है, रेटिना पे लेके आना है, यहाँ पर लेके आना है. लेके आ सकते हैं, कैसे इसको वापस रेटिना पे लेके आ सकते हैं. Concave lens. कॉनकेव लेंस. वाई कॉनकेव लेंस, क्यों कॉनकेव लेंस यूज करें, Because concave lens is a diverging lens. डाइवर्जिंग लेंस. तो हमें वैसा चाहिए जो थोड़ी लाइट को थोड़ा सा बिखेरे. अब बिखेरने से क्या होगा, तो ये लाइट है, जैसे यहाँ पर आएगी वो थोड़ी सी ऐसे को ऊपर को चली जाएगी. ये जो है यहाँ से आ रही है थोड़ी सी, वो डाइवर्ट थोड़ी सी ऐसे को होगी, सीधी ना होके. अब यहाँ से होने की वजह से क्या होगा, अब ये इसके पास अच्छा टाइम मिल जाएगा कि वो फोकस कर जाए. तो वो क्या हुआ, जब हमने यहाँ पर बीच में कौन सा लेंस लगाया, Concave lens. concave lens. And why we use concave lens, because it's a diverging lens. It's a diverging lens, that's why I use concave lens here. So is it clear everyone? तो किसी का ऑपोजिट कर लेते हैं. नेक्स्ट सबने कर लिया, ड्रॉ कर लिया. Now next. अब हम इसमें आ जाते हैं. अब इसका हम आई बॉल जो है उसका कर्वेचर थोड़ा सा कम कर देते हैं. इसको हमने आई बॉल को छोटा कर दिया, और जो हमारा आई लेंस है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा. ठीक है, वो थोड़ा लंबा हो गया. इफ यू कैन सी, इज इट क्लियर एवरीथिंग?
इसमें आई बॉल स्मॉल हो गया है, जो आई का लेंस है वो क्या हो गया, इलोंगेटेड, या फिर हम कह सकते हैं थिन। थिन इज मोर अप्रोप्रिएट हियर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमने पहले कहा, अब इसमें क्या होगा, जो रेटिना है, अब रेटिना पे लाइट ना गिर के, इमेज फॉर्म ना होके, वो कहाँ होगी, दूर। कहाँ दूर होएगी, वो फॉर्म होएगी यहाँ पर, जबकि होनी कहाँ चाहिए, यहाँ पर रेटिना पर। यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हो कहाँ रही है, पीछे हो रही है। सो लेट्स ड्रॉ दिस ऑल्सो। तो यहाँ पर भी हमारी लाइट आई है। अब देखो, थिक लेंस है, ज्यादा जगह है, लंबा है। ठीक है, तो इस वजह से जो लाइट जब बेंड करेगी तो उसके पास बहुत स्पेस है कि वो मिल सके जाके दूर। तो हियर यू कैन सी, क्योंकि ये बहुत दूर से होती आ रही है, स्कैटर्ड है। अब इसको अगर हमने सही करना हो तो हमें क्या करना चाहिए इस लाइट को, Convex lens. क्यों कन्वेक्स लेंस, वाई, Because convex lens is a converging lens. तो हमें लाइट को थोड़ा सा पास लेके आना है, इसलिए वी आर यूजिंग हियर कॉन्वेक्स। ठीक है, हियर वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, convex lens because it's a Converging lens. converging lens. ठीक है, that's why we are using it here. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, converging मतलब ये लाइट जो यहाँ पर है, अब देखो यहाँ से जा रही है लेंस के थ्रू। अब देखो खुद ही देख लो, इन दोनों के बीच स्पेस भी कम हो गया है। So that's why it can easily fall on centrophobia. It can easily fall on centrophobia. तो यहाँ से हमारी आई लेंस जो है, या फिर हम कहें हमारा डिफेक्ट जो है, उसको करेक्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन करेक्ट हाइपरमेट्रोपिक आई, और इस डिफेक्ट को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। Or far sighted. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ, कैसे हम डिफेक्ट। मतलब बेटा बस आपने क्या याद करना है, रेटिना पे हमारी जो वो पड़नी चाहिए लाइट और इमेज, अगर उससे पीछे पड़ेगी तब क्या होगा, अगर उससे आगे होगी तब क्या होगा, और करेक्ट करने पे क्या होना चाहिए, लाइट जो है यहाँ फोकस होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी, वो आपने देखना है कि अगर जो हाइपरमेट्रोपिया है तो वो दूर है फोकस, तो उसको पास लेके आना है। पास लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको कन्वर्ज करना है, एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, Yes. नाउ टेक आउट योर असाइनमेंट। नाउ सब असाइनमेंट निकाल लो। ये सबके पास है ना असाइनमेंट? यस, No. you don't have assignment with you? And we are not having assignment. नहीं है या नहीं है? No. Okay, don't have assignment with you. चलो हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं, then discuss this. Let's do this.
मुझे बताना है इसमें से सी क्या है. What is C? Ciliary muscle. Wait, what? B what? Ciliary muscles. बेटा मसल्स के लिए तो मैं ये बनाती ऐसे. सिलियरी मसल्स के लिए तो आई मस्ट हैव ड्रॉन लाइक दिस. Suspensory ligament. लेंस के आगे होता है, पीछे नहीं होता. आइरिस लेंस के आगे होता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द फंक्शन ऑफ कॉर्निया. Repeat. इसको कहना है ना कि शालू से असाइनमेंट लेके कर लेंगे. So function of cornea is what? चलो वैसे ही बताओ. अभी हमने पढ़ा था कॉर्निया का क्या फंक्शन है. Protect our eye from dust particles. अच्छा, सेकंड कौन बताएगा. एक लिखवाया जो था मेरा. Mammary help in refraction. फ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. चलो मुझे अब 8th ए से आ जाओ. नवलीन मुझे बताओ बेटा कि for a person suffering from hypermetropia, doctor will advise him to use which lens? हाइपरमेट्रोपिया है किसी पर्सन को, उसने आई जो है अपनी ठीक करनी है, तो कौन सा लेंस यूज करे. Convex lens. यस कॉन्वेक्स. वाई बेटा. Because converging. Yes, because it will converge the light और उसकी वजह से रेटिना पे वापस फोकस होगा. That's good. Sit down बेटा. Yes, that's good. So now coming to next question. अच्छा आप एक मुझे जनरल बताओ. इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, किसी को मायोपिया है, so which type of food he must include in his diet to protect his eyes and vision? किस टाइप का हमें खाना खाना चाहिए, क्या डाइट में लेना चाहिए कि हमारी आंखें सही रहे. विटामिन ए रिच फूड और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना. चलो ओके. अब मैं कुछ लिखूंगी, इसको आप नोट डाउन कर लो बेटा, क्योंकि आपकी अभी असाइनमेंट जब मिलेगा तो यू हैव टू डू योरसेल्फ नाउ. असाइनमेंट आपको मिल जाएगा एंड यू हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट. ठीक है. So these are the parts of eyes and we have to tell the function of eye part. So मानव आ जाओ 8th से. बेटा tell me the function of pupil. What is the function of the pupil? मानव है या नहीं है बेटा. जूम से माइक ऑफ है, पहले जूम से ऑन करो. यस. नाउ बेटा व्हाट इज द रोल ऑफ प्यूपिल. It is the black one. Through which light enters the eye. Good, that's good. Sit down. So everyone note down to control the amount of light that enters the eye. To control the amount of light enters the eye. To control the amount of light. To control the amount of light enters the eye. ठीक है. अब है आइरिस. आइरिस का बताएगा आरुषि राणा 8th से. What is the role of iris? It gives the size to the pupil. It gives the Size to the size to the pupil. yes. Sit down.
Write down everyone. It controls the opening area of pupil. It controls the opening area of pupil. कि pupil कितना खुलेगा. अगर अंधेरा है, अंधेरे कमरे में हम एंटर कर रहे हैं, सपोज कोई भी एंटर इन अ डार्क रूम, बाहर रोशनी थी वहां से आए, तो हमें अंधेरा दिखता है कुछ देर तक, फिर धीरे धीरे हमारी आईज एडजस्ट होती है. उस टाइम क्या होता है, जो हमारी प्यूपिल जो बाहर थी, क्योंकि लाइट ज्यादा थी तो वो छोटी खुली होती है, क्योंकि आयरस में से कंट्रोल किया होता है, क्योंकि सारी लाइट हमें अंदर क्या करनी है. ठीक है. जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो व्हाट हैपेंस, आयरस क्या करता है, जो प्यूपिल है उसको डायलेट करता है. डायलेट मतलब बड़ा कर देता है. तो बड़ा करता है तो धीरे धीरे, जब एकदम से बड़ा नहीं होता, उसमें टाइम लगता है, कुछ सेकेंड्स लगते हैं टू जस्ट विद द सराउंडिंग. तो जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारा जो प्यूपल है वो डायलेट होना शुरू होता है, बड़ा होना शुरू होता है. ठीक है. तो उसको वो देखता है कि हाँ कितना हमें जो है ओपनिंग चाहिए. तो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द वेदर लाइट इज मोर और लेस आउटसाइड. ठीक है. सो आइरिस दैट कंट्रोल्स द ओपनिंग एरिया ऑफ प्यूपिल. अब आता है कॉर्निया. निमित पाल आ जाओ, 8th से निमित पाल. Function of cornea. To protect the eyelids. It protects eyelids and also help in refraction of light. Yes. Get down everyone. Then retina पे आते हैं. retina के लिए आर्यन आ जाओ 8B से. आर्यन 8B. What is the role of retina? Ma'am, lens left is left. Ma'am, lens is left. लेंस बता दो बेटा, लेंस बता दो. आर्यन लेंस बता दो, क्या काम है लेंस का. मैम टू No, please. मैं टू मैम इंटरेस्ट द मैम दैट लाइट इन द आई दैट क्या उससे रिपीट. मैम इट हेल्प्स टू आगे बोलो. That it helps to. अभी हमने एक चीज की थी बेटा, जब आई लेंस पे लाइट जा रही थी, ओके, दिस इज द आई लेंस, इस पे जब लाइट आती है फिर क्या होती है, ये क्या हो रहा है, बेंड हो रही है. यस बेंड होके ये कहाँ पर फोकस कर रही है, फोकसिंग ऑन रेटिना, है ना. रेटिना में Yes. फोकस कर रही है. तो आई लेंस क्या कर रहा है, इट बेंड एंड फोकस लाइट ऑन टू अ रेटिना. ठीक है. यस ओके मैम. तो एवरीवन नोट डाउन रेटिना का फंक्शन, सॉरी लेंस का फंक्शन. It bends and focus light onto a retina. It bends and focus light onto a retina. Now coming to retina. Retina के लिए आ जाओ रवजोत कौर. रवजोत कौर. Good morning, ma'am. So what is the role of beta function of retina? Ma'am, retina send the electrical signals towards the optic nerve. To outside optic nerve. Or we can say it converts light into electrical signals. है ना? Yes, that's good beta. So everyone note down. It converts light into electrical signals. It converts light into electrical signals. बेटा जो आराम से जेबों में हाथ डाल के बैठे हैं ना, उनके एग्जाम में मार्क्स भी ऐसे आने वाले हैं, देखते रह जाओगे 0. ठीक है. मुझे तो यहाँ पर बिग स्क्रीन पे दिख रहा है सब, तो मेरा तो कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान तो आप ही का होगा वैसे. तो जो भी क्वेश्चंस आज मैं आपको करवा रही हूँ, दैट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम. दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है. सिलियरी मसल्स. लेट्स कम टू द सिलियरी मसल्स. वैष्णवी शर्मा जाओ. यस बेटा. सिलियरी. हाँ. Ma'am, ciliary muscles help to control the size, like to मतलब कि अगर जो लेंस है उसको बड़ा करना है या छोटा करना है, ये this decides by ciliary muscles. It change the shape. It change the shape of lens. चलो. अब मुझे एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन पूछूंगी, बड़े ध्यान से सुनना. In the eyes of Rahul, in the eyes of Rahul, the ciliary muscles are contracted and lens is more curved. ठीक है.
तो जो एक राहुल बच्चा है उसकी जो आंखें हैं उसका जो लेंस है वो कर्व्ड है, मोर कर्व हो चुका है, और जो सिलेरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। दिस शो दैट ही इज वॉचिंग टीवी, ये बताता है वो टीवी देख रहा है। अब कैसे देख रहा है, वेरी क्लोजली और वेरी फार अवे। Very closely. क्योंकि आई लेंस क्या हो रहा है, कर्व हो रहा है, बहुत कर्व हो रहा है। वो कब होगा, जब हम एकदम पास से देखेंगे, ठीक है। सो इज वॉचिंग टीवी वेरी क्लोजली, ठीक है, दैट्स वाई। देन आ जाता है जो आपके असाइनमेंट में है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मायोपिक आई, वो आपको बता दिया है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया, तो हमने पढ़ा है मायोपिया के क्या कारण है, कि जो आई लेंस है जब वो बल्ज आउट हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है और आई बॉल इलोंगेटेड हो जाता है, और जो इमेज है दैट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना, नॉट ऑन रेटिना, रेटिना के सामने बनती है, ठीक है। अब इसका आ जाता है हाउ कैन बी करेक्टेड, कैसे करेक्ट कर सकते हैं मायोपिया को। by using concave lens. यस, इसी का ऑपोजिट आ जाता है हेट्रोमायोपिया। क्या कॉजेज है, इसका कॉजेज है शॉर्ट आई बॉल, और जो आई लेंस है वो इलोंगेटेड हो जाता है। और इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, Convex lens. अच्छा कोई मुझे बता सकता है कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस। Your voice is not audible. आपका इतना शोर आएगा, हो गई। एक टाइम पे या तो आप अपनी खुद की आवाज सुन लो या तो मेरी आवाज सुन लो। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुमने अपना ही नॉइस सुनना है या फिर मेरा जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सुनना है। तो यू आर क्रिएटिंग सो मच नॉइस, स्पेशली 8th A. You are disturbing even 8th B also. Now from 8th A, पुनीत आ जाओ। पुनीत, मैम ये तो बोल नहीं रहे थे आपकी आवाज नहीं थी, योर साउंड वाज नॉट ऑडिबल, दैट्स व्हाई कह रहे थे कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, चुप थे ये तो। अच्छा मैम वही बोल रहे होंगे, सारे एक साथ बोल रहे थे ना तो समझ ही नहीं आता बोल रहे हैं शोर मचा रहे हैं। ओके, सो आ जाओ 8th A से पुनीत आ जाओ, 8th A से पुनीत। Yes, बेटा कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। ऐसे बोलो नॉर्मल, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, you don't have to ask anyone, just speak out. What do you understand by color blindness? अच्छा ब्लाइंडनेस क्या होती है बेटा, ब्लाइंडनेस किसको कहते हैं। अच्छा सिंपल बता दो ब्लाइंडनेस क्या होता है। जिसमें जो दिखता नहीं है। That's good, that's really good, yes, जिसमें दिखता नहीं है। अब अगर हम आगे वर्ड लगा दे कलर, तो क्या नहीं दिख रहा हमें। यस बेटा आप एकदम सही बोल, तो हमें कलर नहीं दिख रहे। अब कलर कैसे नहीं दिख रहे, अब इसमें क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस में बेटा, हमारे पास जो ये सारे कलर्स हैं, ठीक है, सामने होते हुए भी हमें यहाँ पर अभी दिख रहे हैं कि रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, एवरीथिंग इज देयर। अब उसमें क्या होता है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये रेड है, ग्रीन है या रेड है, तो उसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। हमें कलर्स दिखना जो है, समझना, डिफ्रेंशिएट करना हमें नहीं आता। और दो कलर्स में होता है, स्पेशली इट इज मोर इन ग्रीन एंड रेड में डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता, ये रेड कलर है या ग्रीन, ठीक है, हमें ये कलर्स नहीं दिखते, ठीक है। दैट्स डाउन बेटा, दैट्स गुड, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाउ अब ये होती किस कारण है, इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है, इट्स जेनेटिक। जेनेटिक मतलब हमारी फैमिली में कभी किसी को हुई हो तो हम में आ गई है, ऐसे, ठीक है। इट्स नॉट कि किसी खाने की वजह से हुई है, ये बेसिकली जेनेटिक होती है। अब आ जाते हैं व्हाट इनेबल्स द आई टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस
different distances and how. तो ये accommodation आ जाता है, कैसे करती है वो हमने पढ़ा कि अगर वो curve हो जाएगा then we can see near object. If it's elongated or thin we can see far objects. अब मैं लास्ट के 2 क्वेश्चन है जो आपसे पूछने वाली हूँ. Why can't we see objects closer than 25 सेंटीमीटर? अभी हमने स्टार्टिंग में किया था, अगर हम 25 सेंटीमीटर से पास कोई चीज लेके आते हैं तो why can't we see that object? Yes, 8B first bench girl, वैष्णवी के साथ वाली. Ma'am, because our lens that is being pressed by the ciliary muscles cannot press more, so that's why we cannot see. That's really good. Yes. बहुत अच्छा लगा कि आपने वो याद भी कर लिया जो बताया. So yes, कि उससे ज्यादा सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, उससे ज्यादा आई लेंस नहीं बल्ज आउट हो सकता. 25 सेंटीमीटर तक ही हमारी आंख देख सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती. That's really good. Last question. A person entering a dark room cannot see clearly for a few seconds. Why? ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले just I told you few minutes back. Why? अब मैं यहाँ पर पूरी लाइट है, अगर मैं एकदम अंधेरे कमरे में अचानक से चली जाऊं, मैं एकदम से जहां पर अभी इतना क्लियरली देख पा रही हूँ, मुझे एकदम से नहीं दिखेगा. इट टेक्स टाइम, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा. इवन ये आपके साथ भी होता है. अभी सर्दियां हैं, आप बाहर धूप में बैठे हो, जैसे ही क्लासरूम में आओगे, इवन अगर घर में हो, अपने रूम में आओगे, यू फील दिस, यू एक्सपीरियंस दिस. क्यों होता है ये? yes? 8 है, इससे कोई बताओ. मानसवी है, मानसवी 8 थे. इस बेटा क्यों होगा ये? Why it will happen? Because lens take time to focus. अब देखो बाहर सनलाइट है, ठीक है, ये सनलाइट है, ये हमारी आई है, ठीक है, ये हमारा आई लेंस भी बनाती हूँ मैं पहले, ठीक है. अब सन से या फिर अगर हम बाहर कहीं और जगह है जहां पर बहुत लाइट आ रही है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा लाइट आ रही है ना, ये देखो हर जगह से लाइट आ रही है. लेकिन हमारा जो आई लेंस है वो कितना है? वो तो छोटा सा है, इतना सा है, वो सारी लाइट तो नहीं ले सकता, और उसको इतनी सी लाइट चाहिए, तो वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसे ज्यादा लाइट नहीं चाहिए. आई ज्यादा लाइट जो है डैमेज भी करती है, तभी हमें सन को भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए. तो वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, और उससे थोड़ी सी लाइट ही जा पाएगी, सारी लाइट्स नहीं जाएंगी. ठीक है, अभी बाहर बैठे तो आई, हमारे जो आई लेंस है वो थोड़ा छोटा हो रखा है. छोटा इन द सेंस प्यूपिल छोटा हो रखा है. क्या छोटा हो रखा है? जो हमारा प्यूपिल है वो छोटा हो रखा है. किसने किया? आइरिस ने. ठीक है, अब यही चीज हम उल्टा कर दें, अगर हम अब अंदर हैं, ओके, अब यहां से एकदम अंदर जाते हैं, तब क्या होगा? जहां पर अंधेरा है, ठीक है, देयर इज अ डार्क. अब हमारा पहले प्यूपिल था छोटा और वहां पर लाइट ज्यादा थी, अब यहाँ पर लाइट बहुत कम है या फिर है नहीं, और हमें सराउंडिंग देखनी है, तो क्या होगा बेटा? जो हमारा आई लेंस है वो थोड़ा बड़ा होगा, जो प्यूपिल है वो बड़ा होना शुरू करेगा. कैसे? क्योंकि जो एरिस है वो थोड़ा सा ऊपर को जाएगा, उसको खींचेगा, ऐसे खींचेगा, तो वो इसको हम कहते हैं प्यूपिल डायलेट हो रहा है. इट्स अ डायलेशन ऑफ प्यूपिल. ठीक है, प्यूपिल डायलेट्स so that we can see in dark, but it takes few seconds. इसको कुछ टाइम लगता है, तब तक हमें थोड़ा अंधेरा ही नजर आता है. Got it? Is it clear everyone? Yes. So it's depend upon pupil dilation. I hope it is clear to everyone. Okay. तो अब आपके पास जब असाइनमेंट आएगी, I hope you can attempt or you can perform these questions well. Yes. Yes. So student, that's all. Okay. Any doubt? You can ask. If you have any doubt related to the refraction, you can ask me. No, ma'am. Okay. Wonderful student. Hi, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.